प्रतिपक्ष भावना किसे कहते हैं? अपने विचारों को कैसे काउंटर करना, अपने मानस को कैसे बांधना प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना चाहता है, उसे अवश्य समझना चाहिए। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनाओं यूज ऑफ ऑपोजिट्स इन द प्रैक्टिस ऑफ यम एंड नियम्स। यम और नियम का पालन करना सरल नहीं है साहब, बहुत कठिन है। मैंने कहा यम सामाजिक नियम है, नियम जो है व्यक्तिगत जीवन के डिसिप्लिन है को कहते हैं। तो आपने इसको कैसे पूरा करना है? तो कह रहे हैं कि आपने उसको पूरा करना है प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से। आप अपनी विचारधारा को बदल दीजिए, अपने काउंटर थॉट्स इज कॉल्ड प्रतिपक्ष भावना। यू हैव टू क्रिएट सम काउंटर थॉट्स। वन थॉट इज कमिंग दैट यू हैव टू डू दिस अगेंस्ट ऑफ योर यम, अगेंस्ट ऑफ योर नियमा। यू आर ए योगिक पर्सन बट and you are following your yama and niyama regularly, but one thought is coming regularly that you can avoid these minimum, medium and maximum you can avoid it, but a second thought you rose and you himself have to rise this thought that it is not good, it will going to affect my life, it is not going to affect my life, it will create misery, it will create pain in my life, and not in the only the pains, but ultimately it is going to affect my whole life, not this life but the coming life also. So this type of negativity, if you will think, that will counter your kama, krodha, lobha vrittis, and you will distract those thoughts at that very moment. If you will give some food to those thoughts, negative thoughts, they will grow immediately, they will strengthen themselves immediately, and then it will not be easily, that it will not be possible for easily possible for a man to counter it and to curb it and to control over it immediately. If you are not raising another thought of negativity against of that negativity, means a negativity is arising against of yam and niyam, and you are again arising another negativity to counter that negativity is called प्रतिपक्ष भावना। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। The human mind is an inner instrument, a powerful tool which has immense potentialities for shaping one's life for perfection, bringing heavenly joy or creating a hellish and miserable life through disturbing and distracting thoughts। तो आपके जीवन में ये विचार नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास करेंगी। आपको क्या करना है? One should understand these two words. One is vitarkaha and pratipaksh vitarkaha. Vitark means any negativity is coming against of your yam and niyam, and against of that negativity you arose another negativity. If I'll follow this, I will get this. This negativity will come into my life. This type of यह भाव पैदा करेंगे तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बच पाएंगे, नहीं तो ये बहुत कठिन है बचना साहब। तो कह रहे हैं कि suppose someone wants to practice ahimsa, here the rebellious mind brings many different justifications to convince a person that there is nothing wrong in harming others. If one accepts yama and niyama, the path of ethical living, and accepting some values in life, the mind creates improper or opposed thinking. For example, when tarkaha, logical acceptance, is non-violence, truthfulness, non-stealing, continuance, non-possessiveness, purity or contentment. Vitarka, the improper thinking, leads to violence. The falsehood, stealing, indulgence, greediness, impurity and discontentment. When the mind is distracted by these wayward or perverted thoughts and ideas, suitable countermeasures should be adopted. So you have to arise some counter thoughts. This is described by the sage or Pratipaksha Bhavana, means opposite contemplation. It is a method to reflect upon the opposite to help transform the mind. O Lord, make me an instrument of the peace. कभी अशांत होने का मन जागृत हो जाता है तो ईश्वर से कहना, प्रार्थना करना। तो कहे प्रतिपक्ष भावना से जब काम नहीं चलता, यदि आप काउंटर थॉट्स भी अपना लेते हैं तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि मुझे शक्ति दो, मैं इसमें उलझू नहीं, इसमें से कैसे निकल पाऊं बाहर। तो कह रहे हैं कि आप यदि ऐसा कोई मन में विचार आ जाए नकारात्मक, हिंसा का, कई बार व्यक्ति अपने आप को, दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है, कभी आत्म हत्या करना, ये भी एक नेगेटिव थॉट है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो मेरा तो जीवन में कोई पर्पस ही नहीं है, सब लोग मेरे को हीन दृष्टि से देखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सब लोगों का विचार एक जैसा हो, हम उसे गलत समझ लेते हैं। कई बार हम, कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है परंतु कह नहीं पाता, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ व्यक्ति यदि आपके लिए कुछ नेगेटिव भाव आ भी गया तो समय के साथ साथ वो क्षीण हो जाएगा, तो आप ये मान के चलें कि सारी जिंदगी वो वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अपने अपमान का भय, अपने असम्मान का भय, ये भी प्रतिपक्ष भावना है। कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, यदि ये दिमाग में आ जाए, एक ये नेगेटिविटी आ जाए कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो किसी दिव्यांग को देख लो, मैंने किसी बुजुर्ग को देख लो कार्य करते हुए, अरे मेरी आपकी आयु 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे 45 वर्ष का व्यक्ति दंड बैठक लगा रहा है, 85 वर्ष की महिला दंड बैठक लगा रही है। तो यदि आपकी उम्र 60 साल है तो आप देखो 45 वर्ष का तो युवा लगा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो मुझसे नहीं होगा, तो 45 साल का व्यक्ति लगा सकता है, लगेगा ये तो 60 साल है। तो फिर एक आप भावना पैदा करो, अरे 86 साल की एक महिला को मैंने देखा स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम देखते हुए, वो आज दंड बैठक लगा रहे थे, तो वो भी दंड बैठक लगा रही है, मैं क्यों नहीं लगा सकता, मुझ में ऐसी ऊर्जा क्यों नहीं आ सकती। तो आप उस कार्य की ओर बढ़ जाते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके मन में खेद पैदा होता है कि देखो मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मेरे पास अच्छी कोठी नहीं है, तो उसी वक्त एक क्षण करना, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करते हैं, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, उनको देखो जिनके पांव भी नहीं है, ये प्रतिपक्ष भावना, तो ख्याल ही नहीं आएगा, फिर लगेगा कि अरे ये तो मैंने गलत सोच लिया था। प्रतिपक्ष भावना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। योगी बनने के लिए प्रतिपक्ष भावना अनिवार्य तत्व है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब हमारी शादी के बाद हमें बुलाया गया तो कहा करते थे, भाई जो गृहस्थी हैं वो देखें कि कैसे गृहस्थी, दूसरे गृहस्थी भी अपना घर बार छोड़कर समाज और राष्ट्र के काम में लगे हैं, लोग फॉलो करते थे। अब दूसरी ओर कहते हैं स्वामी जी महाराज की, ये देखिए कितने अच्छे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा दिया है, अपना घर बार नहीं बसाया, समाज और राष्ट्र को प्राथमिकता देखते हुए उन्होंने शादी भी नहीं की, हमें इनका सबसे अधिक सम्मान करना चाहिए। तो प्रतिपक्ष भावना, ये देखना कि कहां कौन सी बात आपको अपील कर रही है। कुछ लोग जिनकी शादी हो गई है, यदि बड़े कष्ट में है, तो वो कबीर को पढ़े, वो कालिदास को पढ़े, उनके जीवन में कष्ट आया, धर्मपत्नी के साथ नहीं बनती थी, वो पूर्णतः वैराग्य में चले गए। और एक तरफ है किसी की शादी नहीं हो रही है, प्रयास कर लिया, तो फिर ये प्रतिपक्ष भावना रखनी कि मुझे समाज और राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ विशेष करने के लिए भगवान ने बनाया है, मुझे अपनी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट नहीं करना, मुझे कुछ विशेष करना है। आई विल बी द एसेट फॉर द सोसाइटी, आई विल बी द एसेट फॉर द फैमिली, आई विल बी द एसेट फॉर द होल नेशन, फॉर द ग्लोब। तो ये आज की कुछ चर्चाएं आपके साथ मैंने साझा की। यदि हिंसा का मन कर जाए तो ध्यान में रखना कि भाई हिंसा का अंत क्या होता है, विकास दुबे जैसा होता है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, पता चला सुबह तक नमस्ते हो गई। तो ये कि भाई कष्ट यदि आपने नेगेटिव किया तो आपको जो बड़े बड़े आप देखते हो ये एनकाउंटर्स होते हैं, फांसी दी जाती है, किस लिए, कि समाज में एक भावना तैयार करने के लिए कि यदि आप इस रास्ते पे चलोगे तो ये इसका फल निकलेगा। फल को देखकर ही व्यक्ति कर्म ना करे, इसे कहते हैं प्रतिपक्ष।